رضا رضا میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا۔ آپ کے ان حالات نے مجھے ایک حدیث پاک پڑھنے کی طرف راغب کر دیا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الکنز المدفون والفلک المشہور۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب کے صفحہ 3 پر یہ حدیث تحریر فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال انا للہ ملکا لہ جناحان، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت الارض سابعہ، وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک وتعالی ریش، فإذا صلى رجل أو امرأة من أمتي علي أمره الله تبارك وتعالى أن يغمس نفسه في بحر من نور تحت العرش فينغمس فيه ثم ينفض جناحيه فيقطر من كل ريشة قطرة فيخلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة۔ اللہ نے ذکر کے لیے زبان دی ہے، اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک اتنا بڑا فرشتہ ہے جس کا ایک بازو ہے پورب میں، دوسرا ہے پچھم میں، اور اس کا سر ہے عرش معلیٰ کے نیچے، پیر ہے 7ویں زمین کے نیچے۔ اب آپ سوچئے کتنا بڑا فرشتہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ طلبہ کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ عوام کے لیے کم مفید ہوتی ہیں، خواص کے لیے زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر عرش معلیٰ کے نیچے ہے، پیر 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور اس کے جسم پر اللہ نے مخلوق کی تعداد کے برابر پر رکھے ہیں۔ اب آپ اگر دنیا میں ایک مخلوق کو شمار کرنے کی بات آئے تو آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ مولانا عظیم صاحب، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی بھی، چونکہ میں جن حالات میں تقریر کر رہا ہوں شاید وہ میری عادت کے خلاف بھی ہے اور کئی چیزیں مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ میں عام طور سے بیٹھ کے تقریر کرتا ہوں اور گرمی میں نہیں بلکہ موسم ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، لیکن بہرحال ان حالات میں کر رہا ہوں تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی بھی ارتریزی ہو اور میری طرف سے بھی وہ چیزیں مل جائیں، تو دونوں کی مشترکہ محنتیں انشاءاللہ کل قیامت کے دن کامیاب ہوگی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ نے اس کے جسم پر رکھے ہیں۔ اب آپ شمار نہیں کر سکتے، اگر آپ سے میں اتنا عرض کروں کہ جامعۃ الرضا کے اس میدان میں کتنے کنکر ہیں آپ شمار کر لیں تو قسم خدا کی آپ کو شمار کرنا ممکن نہیں رہے گا، بہت دشوار معاملہ ہو جائے گا، جس کو ممکن بعید کہا جاتا ہے منطق کی زبان میں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مخلوق کی تعداد کے برابر پر رکھے ہیں، اور اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فرشتہ پیدا کس لیے کیا گیا؟ فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ، میری امت کا مرد یا عورت اگر مجھ پہ درود پڑھتا ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، آپ جانتے ہیں اس حدیث میں اتنا ہی جملہ ہے فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ، اس میں نہ مرت کا لفظ ہے، نہ مرتین کا لفظ ہے، نہ مرات کا لفظ ہے، نہ کرت کا لفظ ہے، نہ کرات کا لفظ ہے، نہ الف کا لفظ ہے، نہ میت کا لفظ ہے، نہ آلاف کا لفظ ہے، بلکہ مطلقاً سرکار علیہ السلام فرماتے میری امت کا مرد یا عورت اگر مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو پتہ چلا یہ فضیلت اسی کو حاصل نہیں ہوگی جو اپنی زبان سے یہ کہے کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اس کا مقام تو بہت اونچا ہے، جس امام کو ہم فالو کرتے ہیں اس نے ہمارے لیے جنت کا راستہ
अल्हम्दुलिल्लाह कितना क्लियर कर दिया है। और कार्य खैर कमाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसने हमारे लिए कितने रास्ते हमवार कर दिए हैं। वो और जमातें होंगी जो 40 दिन का चिल्ला लगा के हमारे सुन्नियों को मुस्तफा करीम के दुरूद से दूर करती है। ये इमाम अहमद रजा खान का दरबार है जहाँ इंसान आता है एक नेकी का तसव्वुर लेके आता है। मेरा इमाम सलाम और दुरूद की फजीलतें देकर उसको हजारों नेकियां कमाने के लिए रास्ते हमवार कर दिया करता है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब ये दुरूद पढ़ लेता है, इधर आपने दुरूद पढ़ा, उधर अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है जा। कहां जाए? रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करता, मौला फरमाता है जब समंदर में जाकर के गोता लगा। अब वो समंदर कहां का है? आपके मुंबई का समंदर नहीं। फरमाया फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्श, अर्श के नीचे जो नूर का समंदर है उस समंदर में जाकर के गोता लगा। फरिश्ता जाता है, चूंकि फरिश्ते हैं कौन, कुरान ने उनके लिए क्लियर कर दिया। एक जगह फरमाया इबादुल्लाह मुकरमून, अगर मेरी कुव्वत हाफजा काम कर रही है, और एक जगह फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह ताला उनको हुक्म दिया करता है। अब अल्लाह का फरमान हुआ, फरिश्ता चला जाकर के अर्शे मुअल्ला के नीचे नूर के समंदर में उसने गोता लगा लिया। ये हदीस में ज़हनो दिमाग में हाजिर करके इरादा करके आया नहीं था, लेकिन चूंकि आपके हालात ने मुझे इस तरफ रागिब किया, कभी कभी कुछ चीजें बड़ी अच्छी हो जाती है और बड़ी अच्छी बातें ज़हनो दिमाग में आ जाती है। अल्लाह सलामत रखे आपको। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये फरिश्ता जाता है, जाने के बाद गोता लगाता है, फिर निकलता है, और निकलने के बाद वयनफुजु जनाही, अपने बाजुओं को झाड़ने लगता है, और अल्लाह ने उसके जिस्म पर मखलूक की तादाद के बराबर पर रखे थे। अब उस तादाद को अल्लाह जाने, तो परों को भी रब्बे कदीर ही जानता है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं फयक्तुरु मिन कुल्ली रीशतिन कतरतुन, उसके हर पर से एक कतरा टपकता है। अब सुन्नियों यहाँ तुम भी आए हो, अवामुन्नास भी यहाँ बैठे हैं, हमारे सुन्नियों को पकड़ के गैर मुकल्लिद पीडीएफ दिखा के ये बता देता है सरकार अलैहिस्सलाम के जमाने में तीजा कहा था, 40वां कहा था। इस तरह के एतराजात किए जाते हैं। हमारा सुन्नी बेचारा आलिमों से दोस्तियां बहुत कम करता है, किताबें पढ़ने का शौक नहीं है। कहता है बात सही है, कुरान कहता है वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को तो वही मिलेगा जो इंसान खुद कमाएगा। लिहाजा अब ऐसी सूरत में हमारे तीजे 40वें करने से फायदा क्या है? आइए से इस हदीस के आखिर टुकड़े पे गौर कीजिएगा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब ये निकलता है, परों को झाड़ता है, हर पर से एक कतरा टपकता है। मेरे मुस्तफा इन कतरों का होता क्या है? जब उसके जिस्म पर बेशुमार है तो कतरे टपक रहे हैं, लिहाजा ये कतरे भी बेशुमार हो गए। सरकार फरमाते हैं फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्ली कतरतिन मलका, अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा कर दिया करता है। मियां जब पर बेशुमार है तो कतरे बेशुमार है, जब कतरे बेशुमार है तो फरिश्ते बेशुमार है। सरकार ये फरिश्ते करते क्या है? फरमाया यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, दुरूद पढ़ने वाले के लिए कयामत तक बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। अब आप बताइए, ज़ैद सुन्नी शौल अकीदा था, दुरूद पढ़ते पढ़ते चला गया। इसी तनाजुर में उस बुजुर्ग को भी देखो जिसको जमाना ताजुश शरिया कहता है, जिसको मैंने अपनी आंखों से कम 7 से 8 साल तक मुसलसल दलाइलुल खैरात शरीफ जो दुरूद पाक की किताबें पढ़ते हुए देखा। और जो मेरे पहले के हैं जिनकी उम्रें और तवील हैं, जो बहुत जमाने से आ रहे हैं, उन्होंने भी देखा कि हुजूर ताजुश शरिया नव्वरल्लाहु मरकदहू का आलम ये कि आपने आखिर वक्त में भी दुरूद दलाइलुल खैरात शरीफ के दुरूद को नहीं छोड़ा। जब जाहिरी तौर पर जबान खामोश हो गई तब मेरे मुर्शिद ने अपने पास रहने वाले हजरत मौलाना आशिक साहब किबला से कहा अब तुम पढ़ के सुनाओ, मैं सुनूंगा। ये दुरूद मुस्तफा से इश्क और प्यार था मेरे मुर्शिद गिरामी वकार को। सरकार ने इरशाद फरमाया कयामत तक ज़ैद सुन्नी शौल अकीदा है, मगर इंतकाल कर गया 50 साल में। जब तक जिंदा रहा दुरूद मुस्तफा पढ़ता रहा, आदत बनी रही। इन जनाब को मेरी तरफ मुतवज्जे कर दे और इनको बता दे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ।
रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कयामत तक उसके लिए बख्शिश की दुआ होती रहेगी। मियां जरा गौर तो करें, ज़ैद सुन्नी से उलक़ीदा है, सरकार पे दुरूद पढ़ा करता है। मेरे मुस्तफा ने जुमे के लिए फरमाया ना अक्सिरुस सलात अलैया यौमल जुमा, फरमाया जुमे के दिन कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करो, फइन्नहा तुरसु अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। एक बदअकीदा कहने लगा अगर सरकार सुनते हैं तो पेश क्यों किया जाता है? मैंने कहा यही तो तुम्हारा हाल है, तुम गंदगी की जगह बैठते हो, मक्खी की मिसाल है। तुम्हें सरकार अलैहिस्सलाम की बहुत सारी हदीसें जो सरकार की समाज को, सरकार के सुनने को बताती है, वो नजर नहीं आती, मगर मक्खी गंदगी पे बैठती है। तुम इन हदीसों को निकालते हो जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है, तुम्हारे सहनो दिमाग में कमी है। मैंने कहा इसलिए पेश किया जाता है, आका करीम सुन तो लेते हैं, मगर आप जानते हैं 70,000 सुबह है, 70,000 शाम है, जो फरिश्ता जिंदगी में एक बार आ जाता है कयामत तक दोबारा नहीं आएगा। ये इन फरिश्तों की किस्मत है कि सरकार का दुरूद बार बार नबी की बारगाह में पेश करने के लिए मौका मिलाया करता है। ये इनके मुकद्दर को चमकाने के लिए अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी है। ये तो इधर नहीं देखो, ये तो कभी नहीं गए हैं। जैसे आप उम्मतियों में देखिए, बेचारा कोई कभी मदीने शरीफ नहीं जा पाता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, मेरे मुर्शिद को देखो, हर रमजान में मदीने शरीफ की हाजिरी हुआ करती थी। ये तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की करम नवाजी है। बहरहाल कसरत के साथ दुरूद पढ़ो। पता चला कि सुन्नी से उल अकीदा 50 साल में इंतकाल कर गया, लेकिन 50 साल के बाद भी तो दुनिया कायम है ना।